Hello friends, I am Ritu Sharma and today I'll tell you how to make and create a quiz using Google Forms. These online quizzes are very important as they reduce our work of correction because they are automatically corrected by the Google. Also in the Excel sheet they provide us a record of all the students who have attempted the test, also how much marks they have scored and which question they have attempted right, which not. All the summary we get directly automatically from the Google. So let us start with the making of these quizzes. So now let's start how we have to make this video. What we have to do is we have to go to the Play Store of our mobile and we have to type here Google form. See, I'm typing here, it's Google FORM, Google Form. So this type of symbol you can see, these are the Forms app. It will come like this, Forms app. You have to open it, and because already in my mobile it is installed with my mail ID, this requires the permission of your mail ID, the attachment of your mail ID. So you have to click with the mail ID and this type of things will get downloaded. So these are the Google Forms with which we will make the quiz. What we have to do is गूगल फॉर्म्स को टिक किया हमने और यहाँ देखिए बिकॉज ऑलरेडी आई हैव मेड दिस क्विज सो आई कैन सी दीज थिंग्स, अदरवाइज यू विल गेट दिस फॉर्म डायरेक्टली. यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ से आप इसको बनाना शुरू करेंगे. आपने प्लस पे क्रिएट किया, ये टेम्पलेट्स आ गए आपके. बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास हैं, यहाँ पे मीटिंग्स के हैं, कुछ चीज़ों के हैं, यू कैन रीड आफ्टरवर्ड्स. बट व्हाट आई वांट इज़ अ क्रिएट ब्लैंक. डाउन में लास्ट में है यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक, प्लस का साइन है, मैं इस पर जाऊँगी और यहाँ ये मेरा गूगल फॉर्म जो है क्विज़ बनने को तैयार हो गई है. इस तरह से मैं इसे यहाँ से टाइटल फॉर्म में जाके इसे यहाँ से शुरू कर सकती हूँ. अगर नहीं तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो बैक. नेक्स्ट ऑप्शन आई एम टेलिंग यू, यू कैन गो and make these quizzes with the help of this survey heart also. I like this more than this because in this I can attach, in the survey heart I can attach the images also. I find more easy in this. So these are the quizzes I have made. Now today I'll tell you how you will make this quiz. और यहाँ देखिए एक चीज़ और दिखा देती हूँ पहले ही मैं आपको. ये देखिए सर्वे हार्ट में यहाँ पे जब मैंने जाके देखा तो नोटिफिकेशंस हैं यहाँ पे और यहाँ पे सब चीज़ें बनी हुई हैं मेरी. तो दिस इज़ हाउ यू विल ऑल्सो गेट एंड यू कैन सी लाइक दिस. यू कैन सी दिस इज़ द इंग्लिश टेस्ट आई हैव मेड. फ्रॉम हियर यू कैन सी हाउ मेनी पीपल हैव रिस्पॉन्सेज. व्यू रिस्पॉन्स, यू कैन डू दिस. You can see the response, how many children are given, the name of the child with the timing, the summary has come. If you want to see the individual, see how this girl has done. अंतिशा नाम है इनका, अंतिशा ने कैसा किया. तो you can see this and you can share also. If you want to share the summary, you can share the summary also if you want. So this is a very good thing, and as a teacher I must say you have to learn and you have to use it. So let us go back how to create this. So this type of thing will come when you open this survey heart, and here plus sign you can see in the down right side bottom. So I'll just do the click. This type of templates will come. If you want you can use these templates. Afterwards you can yourself find out in this how you have to use it. हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म से. जस्ट क्लिक करना है सबसे नीचे आपको, ये यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर मैं अपना जो है यहाँ पे टाइटल देना है मुझे. आई विल राइट रितु. द रीज़न इज़ जब बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भेजते हैं किसी ग्रुप में या मेल में कहीं पर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा फॉर्म है. जिसको भेजा उसको पता होना चाहिए कि सपोज यू आर सेंडिंग टू योर हायर अथॉरिटीज, दे शुड नो विच टेस्ट इज मेड बाय यू. सो ऑलवेज राइट हियर योर नेम और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, रितु ऑनलाइन टेस्ट. Okay, so this is I have made, or I can write Ritu online. Especially I can write here something like English test. Now description में you can write, suppose you are taking the test of chapter number 2. chapter 2 का आप टेस्ट ले रहे हैं जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो आप इसको चैप्टर 2 का टेस्ट ले सकते हैं. आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. डिस्क्रिप्शन डाल दिया. अब इसके बाद हम लोग फिर से प्लस साइन करेंगे. प्लस साइन करने के बाद यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर लेंगे. शॉर्ट आंसर क्यों लिया है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम विच व्हाट आई वांट टू पुट इज नेम ऑफ द चाइल्ड. सो यहाँ पे भी देखिए मैंने लिख दिया नेम ऑफ द चाइल्ड. यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेटिंग में है क्योंकि मैंने बहुत बार कर चुकी हूँ, तो ये इसलिए यहाँ पे अपने आप शो कर गया फुल. अदरवाइज यू हैव टू नेम ऑफ द चाइल्ड. इसको हम रिक्वायर्ड यहाँ दबा देंगे निशान. रिक्वायर्ड से क्या होगा, दिस क्वेश्चन विल बिकम अ मैंडेटरी. रिक्वायर्ड मीन्स मैंडेटरी. कंपल्सरली दे हैव टू फिल दिस कॉलम, दे हैव टू राइट देयर नेम, दे हैव टू फिल दिस कॉलम, देन ओनली दे कैन प्रोसीड फर्दर. इसके बाद हम फिर से बैक जाएंगे, प्लस का साइन दबाएंगे, यहाँ से हम फिर से शॉर्ट आंसर में जाएंगे. शॉर्ट आंसर, क्योंकि शॉर्ट आंसर का मतलब होता है जिसमें कि आपको
5-6 वर्ड्स चाहिए हो या मैक्सिमम एक लाइन का हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने टाइप कर रखा है तो नीचे आ गया क्लास एंड सेक्शन। सेकेंड थिंग आई वांट every child to write the class and section. Suppose I am giving this worksheet to all the 3 classes, second A, second B, second C. So I want to know which class student has done this. So this is also mandatory. I am making it compulsorily. They have to fit. फिर बैक जाके यहाँ से प्लस का साइन से पहले यहाँ पर आई शुड हैव रिटन वन मोर थिंग। मैंने यहाँ क्लास नहीं करी डिस्क्रिप्शन, तो आई शुड हैव रिटन हियर क्लास। सो आई एंटर द क्लास ऑल्सो, क्लास 2। ओके, क्लास 2 यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया है, और यहाँ पे मैंने क्लास 2 लिखने के बाद इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। क्लास 2 चैप्टर 2। नाउ अगेन प्लस साइन पे आएंगे। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ देम, आई जस्ट डू अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑल्सो, दैट हाउ मेनी ऑफ देम लव्स इंग्लिश। सो आई राइट वन क्वेश्चन, डू यू like English? Do you like English is okay. Do you like to study English or do you like English? This is okay. Okay, for them this is okay. Do you like English? So he'll write, right, do you like English? I'll put this okay, do you like English is a question they have to write, and also I'll make this as compulsory question. So after this again I'll go back, and after going back what I'll do is I'll again put a plus sign. Now plus sign करते ही फिर से ये पसी चीज़ खुल गई है। Now from here what I'll do is when I'm doing this plus sign, यहाँ पर जो चीज़ें खुल गई हैं, अब यहाँ से मैंने सेक्शन को अलग कर दिया है, because I want only these 3 questions should look on the first page of the quiz. यहाँ पे हम डालेंगे चैप्टर, आपका जो भी चैप्टर का नाम था, हमारा चैप्टर का नाम था यहाँ पे हल्दी एज एडवेंचर, तो मैं यहाँ डालूँगी हल्दी एडवेंचर, ADVEN हल्दीज एडवेंचर मेरे चैप्टर का नाम था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, सपोज करते हैं लिख रही हूँ मैं, टिक द राइट आंसर, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना ही सबसे ईजी पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी आप आंसर्स जो होते हैं बहुत शॉर्ट में आते हैं, तो यू कैन कलेक्ट द डेटा और उसमें सेल्फ करेक्शन हो जाती है, तो सबसे अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो ये टिक द राइट आंसर, दिस इज द क्वेश्चन आई हैव गिवन देम। अगेन आई विल गो बैक, बैक जाते ही मेरे पास फिर से मोबाइल में ये आ जाता है। अब मैं यहाँ से प्लस का साइन लगाऊंगी एंड आई विल चूज़ द मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस चुनते ही यहाँ पे इस तरह से आ गया। आई विल राइट what was the name of the girl. Suppose I want to write what, capital ले लिया मैंने, what was the name of the girl, what was the name of the girl. So this is how you can write what was the name of the girl. From here you can put the bar also, what was the name of the girl, question mark. So add option, and the name was, you can write any, you can write Ritu, the name of the girl was Ritu. Option है, option दे रही हूँ बच्चों को मैं. Then I can write Haldi, because this is the right answer, Haldi was the option. And then I can write something Barbie, BIE. So at least, because a multiple choice टाइप क्वेश्चन, सो वी हैव टू गिव एटलीस्ट 3 ऑप्शंस। बस यहाँ से फिर से हमें बैक जाना है, और बैक जाने के बाद हमें इस फील्ड को भी यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देना है, चाइल्ड हैज़ टू गिव द आंसर। यहाँ से फिर से देखिए आप प्लस का साइन है, तो आई ऐड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए अगर आप इस डुप्लीकेट को दबाते हैं तो सेम क्वेश्चन विल कम डाउन। सपोज आई एम शोइंग यू, तो इससे क्या है आपका टाइपिंग वर्क बचता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल। सेकंड क्वेश्चन आई वांट टू राइट व्हाट वाज द नेम ऑफ द जिराफ। सो डुप्लीकेट है तो पूरा पूरा रिपीट हो गया है। आई विल जस्ट चेंज वेर एवर आई वांट, GIRAFFE. So what was the name of the giraffe? So I'll write the options also, because duplicate है तो वैसे ही आ गए। I'll write the name of the giraffe is Smiley, ये इसका करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखी हुई है, I'll just correct the spelling, SMILEY, Smiley। Honey. Then you can write what was the name of the giraffe, Jiffy. Jiffy is also a nice name. So again आप बैक जाएंगे, क्वेश्चन आपका ऐड हो गया है। अगेन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डुप्लीकेट करने से क्या होगा, अगेन वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ फिर से हमने इसको इस तरह करा, और यहाँ पे हमने इसको फिर से मल्टीपल चॉइस किया। ओके, सो वी कैन राइट व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ, व्हाट इज़ द
opposite of happy. Okay, so we can write what is the opposite of happy. So here again option I'll give. Opposite of happy is, you can write sad, then you can add options cute, good. Okay, so this is how you have to go back, and again you can add the question. Suppose now if you want to add a पिक्चर ऑल्सो, सो वॉट यू हैव टू डू इज, जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया मल्टीपल चॉइस करना है तो मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं या शॉर्ट आंसर कर लेते हैं, बिकॉज आई वांट टू शो यू हाउ टू अटैच अ। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ गिव, इसमें अटैच करूँगी मैं इमेज, देखिए ध्यान से, गिव another name, give another name to this story, give another name to this story. I want the child to give another name to the story. अब मैंने यहाँ देखिए इसको, मैंने यहाँ पे अटैचमेंट है, पिन बनी हुई थी, यहाँ से मैं गई अपने इमेजेस पे, इमेजेस से मुझे कुछ पेजेस यहाँ पे हैं हमारे पास मिल जाएंगी। मैंने हल्दीज एडवेंचर की यहाँ पे एक फ़ोटो थी, ये देखिए इसको चुन लिया है, इस तरह से यहाँ सेलेक्ट होकर ये पिक्चर्स आ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिक्वायर्ड कर दे रही हूँ। अब ये देखिए इस तरह से ये आ गया है, यहाँ पे रिक्वायर्ड होते ही यू कैन सी दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक द क्विज। यू कैन अगेन डू टेक सम अदर सेक्शन जिसमें कि आप कुछ टफ क्वेश्चन डाल सकते हैं, देन अगेन यू कैन हैव वन मोर सेक्शन जिसमें कुछ ईजी क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो योर क्विज इज़ रेडी। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़, वी हैव टू गो टू द सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाना है हमको, यहाँ से हम चाहें तो इस फॉर्म को देख सकते हैं, प्रीव्यू बटन था ये, प्रीव्यू में देखिए आपको दिखाई पड़ेगा कि दिस इज स्टार्ट, आप करेंगे स्टार्ट हो गया आपका क्विज। अब यहाँ पे आपको जो है नाम रिक्वायर्ड फील्ड है ये आपकी, बच्चों को भरनी है। डू यू लाइक इंग्लिश, नेम ऑफ चाइल्ड, क्लास सेक्शन, डू यू लाइक इंग्लिश, चैप्टर हल्दीज एडवेंचर, क्लिक द राइट आंसर, देन व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइल्ड, कुछ गलती है तो यहाँ से ठीक किया सकती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जिराफ, हियर इट इज़। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैप्पी, अपोजिट ऑफ हैप्पी सैड है हमारा जो करेक्ट आंसर है। गिव अनदर नेम टू द स्टोरी, सो दिस इज द स्टोरी, दे कैन राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सबमिट। यहाँ से हम सबमिट करते ही हमारा ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। हम बैक आते हैं, ठीक है, बैक करना है, अभी सबमिट नहीं करना है हमें, से थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं ज़रा। हम सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ से इसका लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे चेंज दबाया थीम को चेंज करने के लिए। सो दिस इज़ द माई क्लासरूम फोटोग्राफ, सो आई हैव पुट दिस थीम, ये आपकी गैलरी मिल जाएगी आपको बड़े आराम से। आई हैव पुट दिस, वेलकम पेज है, स्टार्ट लिखा हुआ था। इफ़ यू डू नॉट वांट टू राइट हियर स्टार्ट, यू कैन राइट वेलकम, यू कैन राइट हियर वेलकम क्लास, वेलकम क्विज, वेलकम टू द क्विज, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। वेलकम से अच्छा स्टार्ट ही सही रहता है, बिकॉज बच्चों को समझ में आता है कि यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा उनका। बैक करके देखिए यहाँ पे अलाउ मल्टीपल चॉइसेस, अगर आप यहाँ पे अलाउ मल्टीपल चॉइसेस को टिक कर देते हैं तो बच्चा एक से ज़्यादा बार भी इसको रिस्पॉन्स दे सकता है। सपोज उसने अभी भरा, थोड़ी देर में उसको लगा कि नहीं दिस वॉज द रॉन्ग आंसर, अगेन आई शुड ट्राई, वो दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करेगा आपके इस क्विज लिंक पे, और अगेन ही कैन डू द रिस्पॉन्स, ही कैन अटेम्प्ट द क्विज। अदरवाइज अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो ही इज़ अलाउड ओनली टू गिव द टेस्ट वन टाइम, वंस ओनली। सो मैं यहाँ पे इसको अलाउ कर देती हूँ। शो समरी ऑल्सो, आफ्टर द डूइंग द टेस्ट द रिस्पॉन्डर, द चाइल्ड हु इज डूइंग दिस, ही कैन सी द रिस्पॉन्सेज। Yes, I want him to see the responses, I want him and her to see the responses, so I'll just put a tick over here also. क्वेश्चन नंबर शो करने चाहिए, बिल्कुल शो करने चाहिए, so I put this tick also. अब यहाँ जाके आप इस चीज़ को जो है सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ खुल के आ जाती है, इस तरह से आपके सामने दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप कलेक्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बिकॉज जो कि आपके मेल ID में शो करेंगे। कॉपी लिंक है और व्यू फॉर्म है, हमें क्या करना है, व्यू फॉर्म करेंगे तो व्यू फॉर्म आएगा, और अगर आप कॉपी लिंक करते हैं तो आपके पास कॉपी लिंक आएगा। यू कैन जस्ट कॉपी द लिंक, लिंक इज कॉपीड हियर, एंड यू कैन जस्ट गो टू योर मेल ID, you can click your mail ID and you can paste this here and you can send it to your whoever you want to send. अदरवाइज बैक आके आप इस कॉपी लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं। देखिए कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं यहाँ पे, और मैं इसमें जिसमें चाहूँ उसमें पेस्ट कर सकती हूँ, और ये लिंक डायरेक्टली बच्चों के पास चला जाएगा। आप चाहें तो इसको लिंक को कहीं अपने पास सेव कर रख सकते हैं, सो दैट इन द मॉर्निंग whenever you have to give this sheet quiz to the children, at that time you can send. So this is a very good thing. I hope you all will like this, and this because this is actually a very good thing, so you should use this. And you can see here
बिकॉज अभी मैंने किसी को दिया नहीं है तो ये फॉर्म के कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आए हैं। जब इस फॉर्म को आप दे देंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए मैंने जब ये फॉर्म को दे रखा है तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरह का मैंने फॉर्म बनाया था यहाँ पे, और 31 रिस्पॉन्स मेरे पास आ चुके हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए हैं पहले। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। आई रियली होप these are the students who have attended the test, and how they have attended this also we can see. Out of 31 is the first child who has done, this is the second child. आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम कौन से पेज पे था, उसको आप स्क्रीनशॉट मार के यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज भी सकते हैं कि दिस इज़ हाउ यू हैव डिलीटेड, दिस इज़ हाउ यू हैव डन, and you can delete also whatever you want you can do with this. You can export this whole file, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप PDF फॉर्म में, एक्सेल शीट फॉर्म में। जब आप इसको करेंगे यहाँ से तो एक्सेल शीट आपकी जो है वो यहाँ से चली गई है और आपको कुछ ही देर में दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पे भी दिख नहीं रही है, ये एक्सेल शीट आपको दिख जाती है थोड़ी देर में आपके गैलरी में जाके कि कितने बच्चों ने किया एज ए होल, यू कैन सी एंड यू कैन सर्च. सो दिस वाज अ वेरी वेरी नाइस थिंग. Wish you all a very very happy learning and wish you all a very very happy making these Google quizzes. Thank you. Jai Hind.